everyone, welcome to the last video of indefinite integration, video number 16, where we are going to learn type 16. Now in type 16 you will be able to recognize the form as x square plus 1 in the numerator and x to the power 4 plus lambda x square plus 1 in the denominator. This kind of term should be there, or in case of plus you can have minus also, or you can also have 1 in the numerator and the denominator remains as it is. Now what is the first step to solve type 16? The first step is you will divide numerator and denominator, that is each term, by x square. The next step is step number 2. You will express the denominator in the form of x plus minus 1 by x whole square plus minus k square. Step number 3. Introduce 1 plus 1 by x square or 1 minus 1 by x square in the numerator if it is not present. Basically this step is basically you have to introduce here if 1 is there. I will tell you how, depending upon the denominator. Now how? In substitute x minus 1 by x equal to t or x plus 1 by x equal to t, depending upon the denominator whatever we have made, right? So अगर हमारे denominator में x minus 1 by x equal to t है तो numerator में 1 plus 1 by x square dx equal to dt होना चाहिए. तो अगर numerator में ये present है तो denominator में इसका whole square बनेगा, x minus 1 by x का whole square बनेगा. अगर numerator में 1 minus 1 by x square प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर में x plus 1 by x का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि उसको टी पुट करेंगे. अब आप सारे क्वेश्चन को टाइप 4 में रिड्यूस कर लीजिए एंड नाउ यू इंटीग्रेट एंड पुट द वैल्यू ऑफ t बैक. सो दिस इज हाउ यू विल. आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन द सेम थिंग अबाउट स्टेप 3 and step 4, हाउ टू रिड्यूस योर कन्फ्यूजन. इफ 1 plus 1 by x square is present in the numerator, then put x minus 1 by x equal to t such that इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1 plus 1 by x square dx equal to dt आएगा, जो कि न्यूमरेटर में ऑलरेडी होगा, राइट? क्वेश्चन करते हैं तो ये सारे स्टेप्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 चिल्ड्रन. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1. सो फॉर्म वही है, ऊपर स्क्वायर है, नीचे x की पावर 4 है. तो सबसे पहला स्टेप है हर टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड कर देना. राइट चिल्ड्रन? सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद 1 plus 1 by x square dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर. अब चेक करिए, क्योंकि ऊपर प्लस का साइन है तो मैं -2 एंड +2 ऐड कर दूंगी. ऐसा मैंने क्यों किया? रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ. -2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स में लिखूँ अगर, तो चेक करिए x इंटू 1 बाई एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं लिख रही हूँ कि क्यों लिखा. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus 1 by x square dx. चेक करिए डिनोमिनेटर, कैन आई से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab चिल्ड्रन. इट इज़ x माइनस 1 by x का होल स्क्वायर और यहाँ पे +2 आया तो +2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर. अब चेक करिए, इफ आई पुट x minus 1 by x equal to t children, so 1 plus 1 by x square dx will be dt. So check, the question gets converted into dt upon t square plus √2 का whole square. So you remember type 4 integration of 1 upon x square plus a square. So this is 1 by a tan inverse x by a plus c. Put the value of t back to get the final answer. So t was x minus 1 by x. So this is how we solve this question. Now let's talk about question number 2. If we talk about question number 2 children, in the same way, form easily recognizable है, ऊपर स्क्वायर है, नीचे x की पावर 4 है. अगेन पहला स्टेप सेम, x स्क्वायर से डिवाइड, सो 1 minus 4 by x स्क्वायर. अब मैं ये डायरेक्टली लिख रही हूँ, x की पावर 2 प्लस 16 by x स्क्वायर. अब चेक करिए समझाने के लिए कि आपको कैसे पता चलेगा प्लस माइनस 2 करना है या उसकी जगह कुछ और करना है. चेक करो, मैं इसको लिख सकती हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो मेरे पास यहाँ ऊपर माइनस है तो नीचे +2 इंटू a इंटू बी. तो चेक करिए, अगर मैं 2 इंटू a इंटू बी कर रही हूँ तो मुझे 8 को ऐड करना पड़ रहा है, और अगर मैं 8 को ऐड करूँगी तो मैथमेटिक्स है तो 8 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. सो 1 minus 4 by x स्क्वायर. अब चेक करिए, ऐसे लिख सकते हैं x प्लस
4/x का whole square minus 8 can be written as 2√2 whole square, children. Now let's check. Put x plus 4/x equal to t. So 1 minus 4/x square dx is equal to dt आ गया. तो चेक करिए, dt upon t square minus 2√2 का whole square. Again type 4, integration of dt upon x square minus a square का formula. एंड अगेन यू विल गेट योर आंसर इन टी, और टी की वैल्यू आप वापस पुट कर दोगे x प्लस 4/x. सो आई होप इसमें ये क्लियर है कि कैसे पता चलेगा कि क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने +2 -2 किया था, इस क्वेश्चन में हमने +8 -8 किया है, राइट. सो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी. नाउ सपोज द क्वेश्चन इज नॉट दैट ईजी टू लुक एट, और हमें पता ही ना चले कि इसमें फॉर्म 16 यूज़ हो भी रही है कि नहीं, तो क्वेश्चन को कैसे करना है. चेक करिए, क्या मैं कॉट थीटा क्यों लिख सकती हूँ बेटा 1/√tan थीटा. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1/√tan थीटा. अब चेक करिए, अगर मुझे ये सिंप्लीफाई करना है तो कैन आई पुट tan थीटा एज टी स्क्वायर, क्योंकि रूट है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा. तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt. अब सेक स्क्वायर तो न्यूमरेटर में है ही नहीं, तो can I say it goes here sec square theta, and again can I write sec square theta as, you know the identity children, 1 plus tan square theta, क्योंकि मेरा सारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट करना है, थीटा में कुछ नहीं होना चाहिए. तो t की पावर 4 आ जाएगी. सो नाउ हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. दिस वॉज t स्क्वायर प्लस 1 2t अपॉन 1 plus t to the power 4 dt, and here it will be under root of t square which is t. तो t cancel हो गया बेटा. So 2 बाहर, t square plus 1 upon t 4 plus 1. तो चेक कर लीजिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह रिड्यूस हो गया, एंड यू विल सॉल्व इट द सेम वे. सो नाउ इट हैज़ रिड्यूस टू टाइप 16. तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन डायरेक्टली आपको टाइप 16 के दिखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आफ्टर सब्सटीट्यूशन रिड्यूस भी होंगे टाइप 16 में. सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर, ओके लेट मी गो बैक टू द सेम स्लाइड. सपोज आई वॉन्ट यू टू डू क्वेश्चन नंबर, I'm sorry, I wrote it 13, it was 3. Suppose I want you to do question number 4 also in the same way. Now have a look at question number 4. ये तो t हो गया, right? अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, सब्सटीट्यूशन सेम है यही वाला, और d थीटा की वैल्यू अगेन आपके पास आ गई 2t अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt. अब चेक करिए, यहाँ पे आप अटक जाओगे, यहाँ पे मेरे पास ये आया है, और फॉर्म तब होती है जब प्लस माइनस हो. तो क्या मैं ये 2t स्क्वायर को कैन आई राइट इट एज t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर चिल्ड्रन, एंड देन प्लस 1 माइनस 1, एंड नाउ कैन आई सेपरेट आउट एंड चेक करिए क्या अब मेरी डायरेक्ट टाइप 16 वाली फॉर्म बन रही है. राइट चिल्ड्रन. So I'll be able to, let me just help you out with this question further. चेक करिए, ये वाला फॉर्म एक बार वापस समझा देती हूँ. टी स्क्वायर से डिवाइड, अब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस पहले लिखना पड़ेगा, राइट. और ऊपर माइनस है, जब मैंने डिवाइड किया इसको भी 1 माइनस 1/t स्क्वायर, और तो नीचे मुझे दिस इज़ 1/t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सो प्लस 2 माइनस 2. अब चेक करिए, दिस विल बी अगेन dt. सो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt, नीचे बन गया t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt, नीचे t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर. अब चेक करिए, t माइनस 1/t इज इक्वल टू u पुट हो जाएगा, और यहाँ पे t प्लस 1/t इज इक्वल टू v पुट हो जाएगा. तो यही लॉजिक मैंने बताया था, ऊपर प्लस है तो नीचे नेगेटिव बनाना है. तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt इक्वल्स टू du. सो ये क्वेश्चन हो गया
du अपॉन यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी वी. सो ये हो गया डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर. राइट, तो इसमें tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, इसमें log वाला फॉर्मूला. u और v की वैल्यू वापस t में पुट करना है और t की वैल्यू वापस tan थीटा में पुट करनी है. दिस इज हाउ यू विल डू इट. राइट, सिमिलरली अंडर रूट ऑफ cot थीटा विल ऑल्सो बी डन इन द सेम वे. राइट चिल्ड्रन, like integration of root cot theta whole this again cot theta को हम t square पुट कर देंगे. cot theta का डेरिवेटिव क्या होता है? आई होप आपको याद होगा. tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, cot थीटा का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर थीटा. सारे c वाले के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं. राइट, सो अगेन cosec स्क्वायर थीटा हमें नहीं चाहिए, तो कैन आई से d थीटा इज माइनस 2t dt अपॉन cosec स्क्वायर थीटा. अगेन cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, सो माइनस 2t 1 प्लस t की पावर 4 dt. अगेन ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, माइनस साइन बाहर, 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4 dt. अगेन सेम वे में जैसे हमने ये 4th क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 में भी ज़्यादा घबराना नहीं है. चेक करिए, यहाँ पे भी बहुत बच्चे अटक जाते हैं. तो डिवाइडिंग बाय cos 4x अपॉन cos 4, सारे को cos 4x से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर भी. सो ऊपर आ जाएगा sec 4x अपॉन दिस इज tan 4x प्लस 1 dx. राइट चिल्ड्रन, सो नाउ हाउ टू सॉल्व. नाउ फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फर्दर, इसको लिख सकते हैं बेटा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 प्लस tan दिस. अगर मैं tan x को t पुट करूँ बेटा तो मेरे पास sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt तो आ जाता है, तो लेकिन ये sec स्क्वायर x बचता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x. अब चेक करिए, अब आपको फॉर्म दिख जाएगा बहुत क्लियरली. 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, दिस इज डी टी. अगेन क्वेश्चन नंबर 1 में रिड्यूस हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट indefinite integration. In the next video, we will continue with definite integration, children. If you still have any doubt in indefinite integration, kindly leave in the comment below and I'll get back to you. Thank you and stay tuned.